So as like Smita ma'am has briefed you about my background, my domain, what I'll be covering. So sometimes we all feel like okay, किसी को technical में interest होता है, किसी को लगता है कि okay, maybe it's difficult for me, maybe I should explore something new, something which do not require a very technical core technical background, जिसको tools में इतना मजा नहीं आता है या it's like um, we just can't stick to just one field. We should try to explore more than one, so that then only we'll be able to understand like what our interest is. Like unless and until we don't know what are different fields, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हमारा interest किस में जा रहा है, कहाँ inclination है. So one such field is this, which I am working since last more than 5 years, close to 6 years. And I was not also from a very core technical background, to be very honest. But this doesn't mean that technical expertise is not required. So the basics should be clear, but vulnerability क्या होती है, tools क्या होते हैं, कैसे. So ultimately we work for a company जहाँ पे उनको भी नहीं पता होता है कि what is they expect us to tell them what they are supposed to do. So जब हमें नहीं पता होगा तो हम सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे. So like हम लोग जिन clients के संग काम करते हैं, so they not everyone is from technical background. HR डिपार्टमेंट भी होता है, IT डिपार्टमेंट भी होता है, उनके फिनेंस डिपार्टमेंट भी होता है. सो एक बात लेमैन के टर्म्स में हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखो आपको ऐसा करना है, दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू, दिस इज द लूप होल, दिस इज द वल्नरेबिलिटी, दिस इज हाउ यू कैन रेक्टिफाई इट. एंड इट इज अ वेल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें प्रेजेंट करना होता है जो हम बोलना चाह रहे हैं. सो अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स व्हिच कनेक्ट सॉफ्ट स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके कंसल्टिंग स्किल्स, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट कि हाँ उनको आपकी बात समझ में आ रही है. ऑब्वियसली knowledge is the basic element कि पता ही नहीं होगा, but how you're presenting that. So जब हम risk management, auditing, consulting की बात करते हैं, the basic is like communication skill is required. How you are presenting, and not necessary कि MBA वाले ही पढ़ते हैं ये. Though I have done MBA like DAVV, मैं information system में ही मैंने MBA करा है, but that was for a different reason. But not necessary कि MBA वालों को ही समझ में आता है. हम लोग भी risk management कर सकते हैं. Like the course which from where I have studied like NLIU में, so NLIU का masters का 2 साल का course था, National University Institute University Bhopal. So therein like students were there from different backgrounds. They were from BCA, BSc, mechanical engineering, like so that course was techno legal course because everyone was not from technical background. So this topic is focusing on obviously audit की जब बात कर रहे हैं तो I'm not going to explain you about financial audit, but audit की basic practices क्या होती है और IT audit क्या होता है. IT audit में हम क्या क्या चेक करते हैं. IT audit से पहले एक मैं पार्ट कवर करूंगी, रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट सुनते हमें लगता है कि हमारा क्या काम हो सकता है इसमें, like it's a question mark. But risk management in IT, Sunita ma'am has told IT risk management or risk management in IT. So I'll try to explain as much as I can. If you have any question, any basic, any layman, any low level question, doesn't matter because it's new. So I'm happy to answer. I'll try to answer how whatever I can. So without wasting further time, I'll quickly share my screen. So I think you got a little bit of understanding what will be covering in next 1.5 hours to 2 hours. And so I hope you all can see my screen. Is it visible? Okay. So if you can see this first slide, I think it's doing the slideshow. Just a minute. Yeah. So if you can see this background itself, I've intentionally taken because it is covering a lot of things. It is like risk management to likha hai, but what are the components of risk management? हमें identify, assess, review, and I think monitor, mitigate, all these things are there. But so this is a very this domain requires people जिनको बात करने का बहुत शौक है, जिनको consulting का बहुत like interest है कि हाँ I need to talk to them because I am love public speaking. तो मुझे client से बात करने में, that is why I have chosen this field because I can't work just on Excel file and reports and just do the documentation work. I love talking. So that is why I have chosen this field where I get a chance to interact with multiple clients across the globe, UK, US, Netherlands. Right now I'm working with Indian clients also. So this is the field where I do training and awareness for them also.
So because वहाँ पे भी हर लेवल के लोग होते हैं तो उनको एकदम बेसिक से समझाना पड़ता है, and because information security starts from the junior staff level to higher management. We can't exclude any one person की हाँ ठीक है HR को पता होना चाहिए, IT को पता होना चाहिए, लेकिन अगर उनके सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा है मेन गेट पे उसको नहीं पता चलेगा तो उसको सिक्योरिटी से क्या मतलब है? ही इज अ सिक्योरिटी गार्ड, सो ही फिजिकल सिक्योरिटी ओके फाइन, बट एंट्रीज रजिस्टर में होती है, वहां से हमारा सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है द मोमेंट वी एंटर इनटू प्रेमाइसेस। नाथालाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, हम कंपनीज में जाते हैं वहां पे हमें एंट्री कराई जाती है कि द मोमेंट वी एंटर इनटू प्रेमाइसेस वहां से हमारे फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क, एसेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हम रूम्स में जाते हैं, फिर सर्वर्स, सो इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कल बताया था। सो but ultimately, before moving to next slide, ultimately what we are protecting, जो टूल्स की बात अभी जो लास्ट सेशन में आपने जिस टूल के बारे में पढ़ा था, हमारा अल्टीमेटली पर्पस क्या है सिक्योरिटी का? कल मैंने आपको आई थिंक टुडे आल्सो पांडे सर हैज कवर्ड CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी। हम किस चीज की CIA प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लाइक आई अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वांट दिस टू बी वेरी इंटरैक्टिव because I want you to have that question mark in your mind, then only आप गलत आंसर दे दो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चलेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, हम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस चीज की कॉन्फिडेंशियलिटी? इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस चीज की? या अवेलेबिलिटी हम इंश्योर कर रहे हैं कि अवेलेबल हो, ये जूम प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, एंड इसमें वेटिंग का मैम ने इनेबल करा हुआ था, दैट वाज अ कंट्रोल, क्योंकि कोई किसी के पास पे लिंक आ जाएगा और वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा, दैट पर्सन is not supposed to join. He is not from that background. He just comes and join in without any purpose. So वो एक risk रहेगी. Like just example which I'm giving you. So that is why waiting का enable रहता है इसमें. So I was requesting ma'am, please let me in. So this was a, we can disable it, fine, for ease of use. But that was a control which which Zoom has put in कि unless and until the host accepts that request, no one should join. So my question to you is, which I want you to answer in like any one of you, to before I move to the next slide, what we are trying to protect ultimately, हम किस चीज की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, किस चीज की प्राइवेसी इंश्योर करना चाहते हैं हम साइबर सिक्योरिटी में, what we are trying to protect? आप बोल सकते, लाइक कोई वन वर्ड में आंसर देना चाहे दे सकता है, किसी को लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहोगे, आई विल ट्राई टू पुट इन दैट वन वर्ड, बट आर रिस्क मैनेजमेंट हम किस चीज, आंसर्स आर कमिंग ऑन चैट बॉक्स आल्सो। ओके ओके, आई थिंक मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर सेंडिंग टू वन पर्सन, यू कैन जस्ट नॉट टू एवरीवन। ओके, मिस्टर शिवम कुमार answered that data, and Dr. Zaya Surjani answered personal information. Right, Shivam Kumar, I got your answer now, data and personal information, right. Anything else which comes to your mind? Data is all yes, data is the first. I think someone Sadhguru Institute answered yes, data. Anything else which comes to your mind? Everything comes down to data only. Whatever I'm speaking, that is called also an information. Okay, maximum answers are coming as data. Right, good. So data is we are trying to protect confidentiality of the data, integrity, ability. Now, data can be in any form. This is in PPT form. The files which are there in our offices are like जो bundles पड़े रहते हैं वो paper format में होता है. Then जो लैपटॉप में डेटा स्टोर हो रहा है हमारे, दैट इज फाइल्स होती, सॉफ्ट कॉपीज होती हैं. फायरवॉल से जो डेटा जा रहा है वो नेटवर्क लेवल पे डेटा होता है हमारी, मतलब डेटा को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट. बट इफ आई टेल यू, डेटा को हम एक बोल सकते, लाइक जो भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उससे हम एसेट बोल सकते हैं. मैं कॉमर्स या उस बैकग्राउंड वाला एसेट की बात नहीं कर रही हूँ, एसेट लाइबिलिटी नहीं, एसेट एज इन विच इज इंपॉर्टेंट टू अस. एसेट कैटेगरी, डेटा कैन बी आवर एसेट, राइट. I hope you all agree what I am trying to say. Asset, yes, okay. So asset as in ASSET. So what is that asset? Asset can be in form of data, physical form, soft copy, application, softwares, ये सब. तो next slide जो मेरी है, that is defining asset, right. So data is an asset.
which we are trying to protect. So आपको थोड़ा सा थ्योरी भी लगेगा इसमें, but I don't want to make it very boring. मैंने इसमें काफी पिक्टोरियल डायग्राम्स भी डाले हैं, एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा थ्योरी हो रहा है so I'll try to make it more interesting. So asset की definition तो जो लिखी है वो लिखी that you all can read. I won't read it. But asset can be intangible form, intangible form, ये सब हमें पता है. सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे कि मशीन्स, फैसिलिटीज, किसी भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जाएंगे, उनकी बहुत महंगी महंगी मशीन्स होती हैं, वो उनके लिए एसेट है. ठीक है. एसेट कैन बी, हम लोग इन इंफॉर्मेशन फील्ड, साइबर सिक्योरिटी फील्ड, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट डेटा, जो इंफॉर्मेशन को हम एसेट मानते हैं. लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिससे कंपनी की फिनेंशियल, लीगल, इन सब रेप्यूटेशन पे या उनके असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको हम एसेट बोलते हैं. सो अगर मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, उनके मान लीजिए दे हैव 50 क्लाइंट्स, सो दे हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कंपनी कि आप हमारा डेटा किसी और थर्ड पार्टी को नहीं देंगे. So my information, also you all are employee of one or multiple universities, offices में, universities में. So we have given your date of birth, your address proof, your bank account details to your respective universities. Now it is that university's responsibility to protect that data. So that is an asset for them. बिकॉज आपके अगर नंबर मार्केट में चला जाएगा, आपका एड्रेस मार्केट में चला जाएगा, किसी और को चला गया, जैसे हम लोग यूजुअली हम लोग शॉपिंग में जाते हैं, सो वी एंटर आवर डिटेल्स ओवर देयर कि आप कहाँ से. कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था, सो दैट इज व्हाई आपने, इफ आई वेंट फॉर अ शॉपिंग इन विशाल और मे बी इन शॉपर स्टॉप समवेयर, सो दे आस्क्ड मी टू, दे फोर्स्ड मी टू राइट माय डिटेल्स कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. So I questioned them, why you are asking me? So they responded to me, okay, for this purpose. But उनसे वो नंबर, मेरा नंबर, वो लोग किसी और को सेल कर देते हैं, तो उससे मेरा नंबर मेरे को फिर मार्केटिंग, प्रमोशन कॉल्स आने लग जाते हैं. So asset can be like machines for any company. People are also an asset to an organization. So you all are assets of your organization. I am an asset for my company because people also have, employees also have certain amount of knowledge. आपको उनके बारे में पता है, उनकी कंपनी के बारे में कि क्या क्या उनके confidential चीजें हैं, एग्जाम पेपर्स पता होते हैं. So आपको बहुत सारी चीजें पता है. You are also an asset. So asset का I think आपको मतलब समझ में आ गया होगा. Further if I move, so it can be, आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, so you can just maybe यहाँ पे you can drop me a message on chat. Okay, next is vulnerability. So literal meaning vulnerability का मैं इसको I'll try to connect all these dots कि मैं ये क्यों बता दूं vulnerability क्या होता है, SIT क्या होता है. So vulnerability normal सा हम लोग एक इंग्लिश का टर्म देखें, it's kind of a, हम बोलते हैं कि we are very vulnerable या this person is very vulnerable, बहुत weakness है, या किसी, हम अगर सिस्टम की, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करें कि I'll try to give an example, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम लेंगे इसमें. किसी एसेट में, एसेट एज इन मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप एक एसेट है जिसमें मेरे बहुत सारे कंपनी के इंफॉर्मेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी डिटेल्स है क्लाइंट्स की. एंड वल्नरेबिलिटी कैन बी अ वीकनेस इन दिस सिस्टम की, मान लीजिए मैंने एंटीवायरस नहीं डाला हुआ है, या मेरा विंडोज डिफेंडर मैंने इनेबल नहीं करा हुआ है, और maybe you can have if this is my company's laptop, like this, right now this is my personal, but imagine this, if this is my company's laptop, I can insert a pen drive and I can copy all their data and I can share with that a competitor company. Fine. So if I'm allowed to insert that hard drive, that is a weakness. उन्होंने disable नहीं करा हुआ USB port. Just an example. So vulnerability is a weakness of an asset. फाइन. सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है कि अटैकर को आपके डेटा को वो चेंज कर सकता है, आपकी सिस्टम में ही कोई कमी है, लाइक इंटरनल वीकनेस इन योर सिस्टम. एग्जांपल यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे, टू चेंज द परमिशंस ऑफ एनी फाइल ऑफ सिस्टम बाय एन अनप्रिविलेज्ड यूजर. अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज, रोल्स, एक्सेस, ये टर्म्स बहुत कॉमन है इसमें. एक्सेस कंट्रोल, हम लोग एक्सेस कंट्रोल एज इन, हम लोग इफ आई हैव नॉट सेट द पासवर्ड, तो मेरा लैपटॉप पे कोई भी लॉग इन कर सकता है. हम लोग पासवर्ड क्यों डालते हैं? क्योंकि मेरा अकाउंट मैं खुद ही एक्सेस कर पाऊँ. सो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, प्रिविलेज राइट्स, रोल्स, ये सब बहुत कॉमन टर्म्स है इसमें. ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट, IT सिक्योरिटी में आते हैं ये सब.
अब आप लोगों ने आई थिंक आई एम नॉट श्योर इस लास्ट सेशन में इफ यू हैव कवर्ड दैट, आपने जिस टूल के बारे में पढ़ा तो एक फील्ड मैंने कल बताया था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कि फ्लॉज बताते हैं कि फ्लॉज वल्नरेबिलिटीज लिस्ट डाउन हो जाती हैं टूल्स के थ्रू कि हाँ हाँ इस वेबसाइट इस एप्लीकेशन में कोड में ये वल्नरेबिलिटीज हैं. सो वल्नरेबिलिटी आई थिंक इट्स अ वीकनेस ऑफ एन एसेट, इट्स अ वीकनेस ऑफ एन इन अ सिस्टम. फिर हम जब थ्रेट की बात करें, थ्रेट इज अ पोटेंशियल इवेंट, मतलब उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए थ्रेट होता है. मतलब एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें, व्हेन अ थ्रेट टर्न्स इनटू एन एक्चुअल इवेंट, it may cause an unwanted incident. It is unwanted because the incident may harm your organization or your system. So it's an external factor. उस vulnerability को exploit करने के लिए threat आता है. तो इसका मैं इसलिए ही बता रही हूँ कि asset को threat, vulnerability और ultimately फिर risk का फॉर्मूला हम निकालते हैं कि हम आगे एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम लोग मान लीजिए 5 एसेट्स लेंगे कंपनी के, उस पे क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उस पे क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, फिर अल्टीमेटली रिस्क क्या होती है. अब रिस्क पता चल जाएगी तो अब क्या करें रिस्क का, व्हाट शुड वी डू विद दैट रिस्क. we'll try to minimize that risk by putting certain controls. So this is a cycle of risk management. हम risk, we are trying to manage that risk. रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते हैं. This is like in real life also, we can't say कि there is zero risk. There cannot be a zero risk anytime, anywhere. We can just minimize that risk. So if you have any questions, keep asking me in chat. I'll try to answer. So this one is like definition of risk. Risk, sunte what comes to your mind? Any harmful event, any unwanted event जो नहीं होना चाहिए. Risk, it's a danger. Like these are the words which comes to our mind when we talk about risk. Like fire, कहीं आग लग रही है, वो एक रिस्क. आग लग सकती है, वो रिस्क है. हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो हम उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स, लाइक आग लग गई तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स से जाते हैं, तो हम उसे मिनिमाइज करने की, उस रिस्क को खत्म करने की कोशिश करते हैं. रिस्क कैन बी, जैसे मैंने आपको यूएसबी पोर्ट का एग्जांपल दिया था, तो risk can be all that. If I've connected my pen drive with my company's laptop, I can copy all their data and can sell it to another client. So उनसे उनका financial loss हो जाएगा, उन पे penalties लग जाएंगे, उन पे legal cases हो जाएंगे. So that is a risk. Fine, data leakage हो जाएगा उस company का. So risk can be multiple, but risk is like unwanted incident, unwanted event which should not happen and which depends on threat, vulnerability or asset. तो ये मैं एक बार basics clear करना चाह रही थी, so before we move further. If you find it boring, let me know. But I'll try to explain with you in practical examples, because मुझे पता है कि आप लोग ने पहले के 2 सेशंस अटेंड करें, it's a third one, so it's like I don't want to make you very hectic और बहुत ज़्यादा टफ हो जाए. So रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो पहले तो हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क है क्या, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम उसे ट्रीट करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है पता चल गया ये रिस्क है, ये लेवल है उस रिस्क का. फिर अब पता चल गया कि हाँ ठीक है इस रिस्क को हमें ट्रीट करना है. ट्रीट मतलब उस पर हमें कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं. तो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेप्स. सो दिस इज अ लाइफ साइकिल, बट फर्दर वील हैव, ये मैं बाद में कवर करूंगी. आई हैव एडेड दिस एट रॉन्ग प्लेस, सो आई विल कवर इट लेटर. सो दिस इज लाइक जस्ट टू make this a very fun type. So risk is like a fire. If controlled, it will help you. If uncontrolled, it will rise up and destroy you. ये किसी ने quote दिया था. This is not related to security, but it's like generic. The purpose of risk management is to change the future, not explain the past. Now, this is like the book of risk, Dan Boog ने ये लिखा है. So, what do you understand by the purpose of risk management is to change the future? Like हम आने वाले incidents को, आने वाले events को control करने की कोशिश करें. अब जो पहले हो गया उससे लर्निंग लेके हम आने वाले इंसिडेंट्स. तो रैंसमवेयर अटैक आया, ठीक है, रैंसमवेयर आया था, उसके बाद से काफी कंपनीज ने को पता चला कि हाँ इस वजह से हम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो दे हैव अप्लाइड लॉट ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है, कोविड आया तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम पे. बहुत सारी कंपनीज, उनको लगा कि उनका VPN स्ट्रांग नहीं है, उनका बिजनेस कंटिन्यूटी इतनी अच्छी नहीं है. तो वी हैव लर्न लॉट ऑफ लेसन इन लास्ट 2 years. तो हमें पता चला पहले का, तो आगे आने वाले ऐसे सिनेरियोज के लिए हम प्रिपेयर हो गए हैं. बट रिस्क इज मैनेजमेंट इज टू चेंज द फ्यूचर, नॉट एक्सप्लेन द पास्ट. दिस इज लाइक जस्ट टू एक जेनरिक एग्जांपल देने के लिए. रिस्क का डेफिनेशन है अनडिजायरेबल इफेक्ट है.
सेकेंड डेफिनेशन आप देखेंगे तो टू पुट समथिंग इन अ स्टेट वेयर इट मे एनकाउंटर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, अनसर्टेनिटी होती है बहुत ज्यादा, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रेमवर्क क्या होता है कि वो रिस्क को एड्रेस करता है और फिर उस पर कंट्रोल्स लगाते हैं। अब जो मैंने आई हैव कवर्ड व्हाटएवर, सो आई हैव ट्राइड टू पुट दिस इन वन स्लाइड। एसेट हमने क्वेश्चन आप लोगों से मैंने फर्स्ट में पूछा था, व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, you all told data, which is fine. Data is a asset. Now threat, what are you afraid of happening? Threat is like हम किससे डर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्या थ्रेट आएगा, ऐसा क्या इवेंट होगा जिससे हम डर, दैट वी आर डिफाइनिंग इट एज अ थ्रेट। अब वल्नरेबिलिटी का क्या बताया था, वीकनेस है वो, हाउ कुड दैट थ्रेट अकर, थ्रेट अपने आप तो नहीं होगा, एक्सटर्नल सोर्स है, आपके सिस्टम में कोई कमी होगी तभी वो थ्रेट उसको एक्सप्लॉइट करेगा, राइट। So vulnerability is like how could that threat occur? Threat is like what are you afraid of happening, and asset you all know. Now mitigation. I can't see this. Just a second. Okay. What is currently reducing the risk? Mitigation, mitigate करना. Mitigate मतलब उस पे कुछ controls लगा रहे हैं. We are trying to reduce that risk to a certain level. So as I told you, we cannot say that risk is now completely cured, completely treated. There will always be certain risk, certain level of risk. लेकिन हम उसको एक ऐसे लेवल पे जाएं जब हमें पता हो कि हाँ ठीक है, इतनी रिस्क पे we can accept it. So that is mitigation. Now asset threat vulnerability mitigation के बाद we all check, ठीक है मान लीजिए वो रिस्क हो गई, वो थ्रेट आ गया, वल्नरेबिलिटी आ गई, उस थ्रेट और वल्नरेबिलिटी के फॉर्मूले से हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अज्यूम, लेट्स अज्यूम वी ऑल दैट रिस्क इज देयर। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट टू द बिजनेस, ऐसा क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे फॉर एन इफ आई विल टेल यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, let's take that same example, USB wala, it's very basic. If you all can have your own example, you can think and you can let me know in chat. I can will try to explain that also. Say for an example, threat was that pen drive external weak, vulnerability is USB port block नहीं करे हुए हैं कंपनी ने, anyone can insert their USB drive, their pen drives and take that data, ठीक है, asset is my company's client's confidential data. Risk can be that data can be leaked and sell to competitor companies and there will be a lot of financial loss, market में reputation damage हो जाएगा कंपनी का, कि बड़ी बड़ी headlines में आ जाएगा. So that is the risk. Now impact, what is that impact? अब रिस्क के बाद इम्पैक्ट सुन के आपको ऐसा लगता है कि ठीक है इतना इम्पैक्ट तो वी कैन, इम्पैक्ट इज लाइक हम इन सबको एक लेवल पे डिफाइन करते हैं, स्केल पे 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी कैन बी उस थ्रेट को होने के कितने चांसेस हैं, थ्रेट प्रोबेबिलिटी इज लाइक मान लीजिए कंपनी में देयर आर लाइक 50 एम्प्लॉइज एंड 50 में से उस पेन ड्राइव इंसर्ट करने की तो बहुत सारे चांसेस हैं, पीपल डू दैट, पीपल, सो प्रोबेबिलिटी हम भी एक स्केल में डिफाइन करेंगे 1 2 3 4 5 में कि हाँ ठीक है इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है, इन सब से कैलकुलेट करके एक रिस्क, so these are all question marks. It's a kind of a brainstorming exercise we do before we come to a conclusion. So risk management is like, first we should know what is important to us, what we are trying to protect, that is a list of asset. So if you have seen asset register, inventory रखते हैं कंपनी ने, so if I say एक किसी कंपनी में क्या क्या assets हो सकते हैं, I'll take that example, मैं एक एक्सेल शीट में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा जो कंपनी का डेटा है वो एसेट है, HR के पास जो एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन होती है वो एसेट है, क्लाउड पे जो क्लाइंट का डेटा जा रहा है वो एसेट है, किसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड है जो उस कंपनी का खुद का है वो एक एसेट है, देन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, कोई उनका खुद की कोई चीज जो वो मार्केट में पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, दैट इज ऑल एन एसेट. तो हम लोग पहले एसेट रजिस्टर की एक लिस्ट बनाते हैं, फिर हम थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, ये सब करके हम अल्टीमेटली कंक्लूड करते हैं कि अब रिस्क पता चल गई है, नाउ वी वुड लाइक टू मिटिगेट दैट रिस्क, फिर हम कंट्रोल्स लगाते हैं. विल कम टू दैट कंट्रोल्स क्या होते हैं. सो आई होप दिस particular slide is clear to you all because this is the base. अब
ये सब चीजें जो होती हैं, दिस इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे आप लोगों ने सुना हुआ, आई थिंक येस्टरडे आई कोटेड दिस एग्जांपल. आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की वाटर बॉटल्स होती हैं या कोई भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे ISO 9001 लिखा होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. लेट मी नो इफ यू हैव लाइक कम अक्रॉस दिस, इफ यू हैव नोटिस दिस एनी ऑफ योर. कोई भी चीज होती है जिसकी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी इंश्योर होती है, लाइक वो फूड प्रोडक्ट्स हो या वो कोई भी प्लास्टिक के आइटम्स हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जिसकी हमें क्वालिटी चेक करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड होता है ISO 9001. Just let me know if in message if you are aware of it. Accordingly, I'll like proceed further. एक कंप्लाइंट मतलब हर एक सेंस ऑफ हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है ISO 9001 लिखा हुआ है, तो ये क्वालिटी इसकी अच्छी होगी. हैव यू नोटिस दिस, एनीवन ऑफ यू? 9001 ISO 9001 लिखा होता है, फूड प्रोडक्ट्स पे भी होता है. बिकॉज मैं वाटर बॉटल इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी वाटर पे लिखा हुआ है, इसलिए आई हैव नोटिस दिस. एनीवन कैन से इफ यू हैव नोटिस दिस. दिस इज लाइक okay. Because I want to know that you all are listening. So thank you for responding. So जैसे ISO information system organization, ISO का जो full form होता है international system organization, ISO का जो full form होता है. So इस organization, international standard organization, international standard. So ISO 9001 जो होता है वो quality management system होता है. ऐसे ही बहुत सारे security से related standards होते हैं. One of them is 31,000. आगे like in further slides I have listed down few of them which are related to our domain specifically. नहीं तो ये there are like multiple domains, हर domains में होते हैं. आप ISO की website visit करोगे, you'll get to know a lot of domains. But considering our domains, one of them is 31,000. I have taken this because this will explain us the risk management steps. So starting from phase 1, scoping and planning, risk identification, risk analysis. ये theory थोड़ी लगता है, but this every step has its own importance. And left and right में if you will see, left green वाले में it's mentioned communication and consultation, and here it's like monitoring and review. So it's not just one time exercise कि हाँ ठीक है हमने एक बार कर दिया फिर छुट्टी खत्म. Every company has to do it every year. क्योंकि if they have considered this getting their company certified, so उनको हर साल उसका एक रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी. Every year is like basic minimum requirement, but I think वो लोग biannually like 6 महीने में भी करते हैं, depending on the if they've added few assets, नए employees ज्वाइन करे हैं, नई applications उनके सिस्टम में आ गई हैं, उनके सर्वर्स नए ऐड हो गए हैं, तो उनके एसेट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. एसेट रजिस्टर इंक्रीज होगा तो फिर रिस्क, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी सब चीज वापस एक बार होगी. सो दिस इज एन एग्जांपल आई हैव टेकन. नेक्स्ट इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन. एक स्टेप बताइए. तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन की रादर देन दिस थ्योरी आई विल ट्राई टू टेक इट इन एक्सेल शीट एग्जांपल, जिसमें हम सब मिलकर एक बार कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में एसेट क्या है, हमारे दिमाग में रिस्क क्या है. रिस्क आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट, रिस्क एनालिसिस है, आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क निकाल लिया हमने. व्हाट कैन बी द रिस्क कंसिडरिंग दिस टुडे सिनेरियो. हमारे दिमाग में क्या क्या रिस्क आती हैं फॉर एक कोई भी रिस्क कैन बी. एक क्या होता है, एसेट रजिस्टर बनता है, फिर रिस्क रजिस्टर बनता है. रिस्क रजिस्टर मतलब इट्स काइंड ऑफ रिपोजिटरी कि हमने considering my company, I am the information security officer or cyber chief information security officer या head of IT. मैं हूँ मेरी कंपनी की, इमेजिन, एंड माय वर्क, मुझे पता है कि क्या क्या रिस्क हो सकती हैं. सो आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल दोस रिस्क, 30, 40, 50 रिस्क. एक रिपोजिटरी बन गई है. एसेट्स क्या क्या है, मुझे पता है कि मेरे इतनी एप्लीकेशंस हैं, मेरे पास इतने एप्लीकेशंस का सोर्स कोड है. देन HR पॉलिसीज, एम्प्लॉइज डेटा, क्लाइंट डेटा, सर्वर्स पे जो डेटा जा रहा है, फायरवॉल्स, ये सारी चीजें एसेट है मेरी कंपनी के. तो बीइंग फ्रॉम IT डिपार्टमेंट आई नो दिस. तो हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, हमने एसेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, हम फिर रिस्क एनालिसिस करेंगे. सो आई थिंक आई एम अगेन एंड अगेन गिविंग एन एम्फसाइज ऑन दिस दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हायर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है. हायर मैनेजमेंट ऐसे द पीपल हु आर लीडिंग दैट कंपनी, गवर्निंग, बिकॉज टॉप डाउन साइकिल है ये.
ऊपर से लेके नीचे तक, बिकॉज और इट्स नॉट लाइक कि मतलब आपको ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस तो देनी होती है एम्प्लॉयज को, बट हायर मैनेजमेंट एज इन इफ आई हैव कम टू नो कि मेरे ये रिस्क है और ये इम्पैक्ट हो सकता है ना, हु विल टेक दैट डिसीजन कि हमें उस रिस्क का करना क्या है। लाइक पता चल गया हमें कि हमारे एप्लीकेशन में बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई है, जो हम हर साल हर कंपनी किसी थर्ड पार्टी से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कराना चाहती है, एंड दैट एप्लीकेशन आईपी एड्रेसेस नेटवर्क पे उन्होंने असेस करा, उन्होंने सॉफ्टवेयर पे करा, उन्होंने सर्वर्स पे करा, सब करा, एंड दे हैव गिवन अस अ रिपोर्ट दैट टीम कि आपके तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, एंड दे हैव डिफाइंड दैट रेटिंग कि ये लो लेवल है, ये मॉडरेट है, बट दीज आर लाइक हायर लेवल। नाउ यू गॉट इट, नाउ हु विल टेक दैट डिसीजन कि अब हमें क्या करना है, एंड डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, कि कॉस्ट भी देखनी पड़ती है कंपनी को, फाइन टाइम भी देखना पड़ता है, सॉफ्ट अगर कोई इफ दे हैव कम अक्रॉस कि उनको बहुत उनके कोई काम रुक जाएगा, उनका बिजनेस डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सो दे कैन टेल ओके लेट्स वेट दिस फॉर 5-6 months, we will not mitigate that this vulnerability, और हम कोई कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे, हमारे पास 5-6 महीने बहुत काम है। they can't say this, they can't, उनका सारा अगर आपको पता चल गया कि आपके सिस्टम में ये vulnerabilities है, then you have to take that action that moment itself, बट कॉस्ट फैक्टर भी आता है, तो ये पूरा डिस्कशन मैनेजमेंट करती है, उनको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। तो रिस्क एनालिसिस मतलब रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एनालिसिस कर लिया, एंड आई थिंक एक स्टेप रह गई है इसमें, which is I think it'll come here, risk treatment. I'll take you that there, risk treatment. Okay, is it there? It's there later. But when we have come across a certain level कि हाँ risk ये risk आ गई हैं, now what to do? Now there are like risk treatment के 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ये try to relate it to cyber security, information security, ये बहुत जेनरिक लग रहा होगा, but I'll again take you with to that example जो हमने पहले बार में USB stick USB ड्राइव का लिया है, हमें पता चल गया कि ये vulnerability है, इससे रिस्क हो सकती है। Now this is a very small example, बहुत, लेकिन इसमें I think you all can relate. ये हो सकता है कि ट्रीटमेंट से 4 T होते हैं, 4 T's, टॉलरेट, ट्रीट, टर्मिनेट, ट्रांसफर। टॉलरेट, ट्रीट, टर्मिनेट, ट्रांसफर। सो ट्रीटमेंट में एज इन लाइक एक लेवल हमें डिफाइन करना पड़ता है कि इतनी रिस्क वी कैन कंसिडर, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग मच, विल टेक, हम लोग नेक्स्ट साइकिल में या नेक्स्ट 5-6 months में लेंगे। एक होता है कि ट्रांसफर में होता है कि हमने इंश्योरेंस की बात आ जाती है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, कि हमने किसी थर्ड पार्टी के संग कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि दे विल टेक केयर ऑफ दैट रिस्क, वी हैव ट्रांसफर्ड आवर रिस्क टू थर्ड पार्टी। ट्रीट मतलब हमने कंट्रोल लगा दिया, हमने यूएसबी ड्राइव जो थी उसका पोर्ट ब्लॉक कर दिया सारे एम्प्लॉयज के लिए, नो वन कैन इंसर्ट यूएसबी ड्राइव नाउ एंड दे कैन टेक दैट डेटा। टॉलरेट मतलब accept that risk, we'll try to consider it because it is not impacting much. Treatment होता है। So risk management is like evaluate and implement selected risk management action options. Risk management, it's again repeating, but it's a kind of risk analysis. Steps हमने देखे हैं कि asset पहले define करिए, फिर threat define करिए, probability निकालिए, impact निकालिए, जब इम्पैक्ट पता चल गया, रिस्क पता चल गई, तो कंट्रोल्स रिकमेंड करेंगे हम उस कंपनी को। तो हम ऐसे डॉक्यूमेंट बना के नहीं देते हैं किसी भी कंपनी को, हम पहले उन कंपनीज के क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, पहले हम फर्स्ट उनकी कंपनी के बारे में जानते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, जिससे एक एज एन कंसल्टेंट, एज एन ऑडिटर कंसल्टेंट, देयर शुड बी अ पिक्चर इन माय माइंड कि मैं जिस कंपनी को कंसल्ट कर रही हूँ उनकी क्या क्या रिस्क हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ एक दिन में ये करा हो गया। अगर FMCG कंपनी है कोई, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई बैंक है, या कोई IT कंपनी है, या कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, Amazon, फ्लिपकार्ट वाली कंपनी, तो सबके अपने अपनी रिस्क होंगी। सो फर्स्ट आई शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग इन माय माइंड
कि मैं जिस कंपनी के लिए ये जानना चाह रही हूँ उस कंपनी की एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं. माइट बी द केस दे मिस आउट एनी एसेट while writing the list of those assets. So it is my duty as a consultant to let them know ki, see, you have missed out these. This can also be your asset. This can also be risk. Fine. So risk and risk management, this is like theory part wala slide, which I will not discuss. You just all can like have a look at it, try to understand, identify, control, वही सारी चीजें हैं. So risk treatment ये किसी और स्टैंडर्ड से मैंने डायग्राम लिया है. So that is why दोनों ओवरलैप करते हैं कई बार. अल्टीमेटली हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उससे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हैं. Now this is a very important slide. जो भी मैंने आपको बताया है अभी, it is all summarizing in this slide and the next slide, assessment and treatment. इसके बाद हम लोग ऑडिट पार्ट की तरफ मूव करेंगे. बट दिस इज लाइक आपको समझ में आ रहा है इसको देख के कि एंड ट्राई टू रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी. जब हम एसेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एसेट, साइबर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एसेट आने चाहिए. जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमारे माइंड में रिस्क आनी चाहिए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड. व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, सो it's a generic thing mentioned over here, but try to have that brainstorming exercise in your mind, because you all are from academics background. Fine, you want to start your career, maybe start something जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि हाउ वी कैन इनिशिएट आवर करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी. ऑब्वियसली टेक्निकल साइड इज ओपन ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो एन ओपन ऑप्शन, बट थोड़ा थोड़ा सबका पता होगा तब जाके पता चलेगा कि हाँ हमें इधर जाना है कि इधर जाना है, कि ये इंटरेस्ट कर रहा है हमें या ये. सो दैट बैकग्राउंड माइंड में ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड में ये जेनरिक तो नहीं लग रहा है. आर बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो एसेट इन्वेंटरी की व्हेन आई हैव टोल्ड यू, द फर्स्ट ब्लॉक जो यहाँ पे मेंशन है एसेट इन्वेंटरी, एसेट लिस्ट, एसेट रजिस्टर जो कहते हैं, जिसके अगेंस्ट एसेट ओनर्स लिखे होते हैं. एचआर पॉलिसीज हैं, एचआर डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन है उसका एसेट ओनर, एचआर हेड विल बी द एसेट ओनर फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसीज. अगर हम बात करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन है, पेरोल डिपार्टमेंट के पास है वो, तो उसका एसेट ओनर कौन हुआ, पेरोल हेड. देन वी टॉक अबाउट सोर्स कोड, किसी एप्लीकेशन का सोर्स कोड एक एसेट है, तो हु इज दैट, हु इज ओनर एज इन हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट एसेट. तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं हम उसमें, क्योंकि दैट पर्सन में लीव द कंपनी एंड सम अदर कंपनी, हम रोल का नाम लिखते हैं उसमें. सो सोर्स कोड का कौन होगा एसेट ओनर, आईटी टीम वाला कोई होगा, आईटी हेड होगा, डेवलपमेंट वाला होगा जिसने कोड बनाया है. तो यूजुअली इट्स लाइक हेड ऑफ आईटी हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है उसकी. If you have any questions in between, just please don't hesitate to ask me. If you want me to give you a few more examples, या आपके mind में examples आ रहे हैं, if you're trying to relate it, अगर theory लग रहा है, तो just let me know, because this slide and next slide would cover the whatever I have discussed so far. I have not gone into very detail. मैं एक Excel file लेके, एक example लेके, I'll try to do it practically जैसे हम clients के लिए actually में करते हैं. So risk source, asset inventory, risk का source कहाँ से आ रही है, वो risk हम यहाँ define करते हैं. Then we'll define a risk criteria that up to that level, say 1, 2, 3, 4, 5. So we'll define, say अगर 3 से ऊपर कोई risk आ रही है तो हम उसे ignore कर सकते हैं, accept कर सकते हैं. अब 3 से ज्यादा आ रही है, 3, 4, 5 level आ रहा है, then we'll have to implement controls. Now ये 1, 2, 3, 4, 5 कैसे आता है, ये threat vulnerability के फॉर्मूले से आता है. That will go when I'll show you in that Excel file. Risk criteria define कर दिया, maintain कर दिया, risk identify कर ली कि उस asset को ये risk हो सकती है, risk owners define कर लिए, risk को analyze कर लिया, evaluate कर लिया. लेवल ऑफ रिस्क, फिर रिस्क प्रायोरिटी, हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि कोई रिस्क ऐसी होगी कि जो विच वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट विद इन लाइक फ्यू डेज, विद इन फ्यू आवर्स. फिर रिस्क असेसमेंट की एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होता है, फिर हम क्लाइंट को उसको
बोलते हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिए, if it is like fine with you, if you are able to accept that these all risks, then they'll come to, and फिर discussions होते हैं उनके साथ, they might have few suggestions, few changes, we try to consider that and then we present them. ये risk assessment हो गया. Then I have told you treatment में हमने 4 options देखे थे: treat, transfer, tolerate, terminate. इसके बाद कंट्रोल्स, जब हमें पता चल गया कि हमें इन रिस्क को ट्रीट करना ही पड़ेगा, हमें कंट्रोल्स लगाने ही पड़ेंगे, देन विल आइडेंटिफाई दोस कंट्रोल्स कि अब कंट्रोल्स कौन से लगाने हैं. जैसे यूएसबी ड्राइव का जो एग्जांपल था, कौन सा कंट्रोल था इसमें? यू नीड टू ब्लॉक दैट पोर्ट, दैट इज द कंट्रोल. फाइन, जस्ट एन एग्जांपल. सो जैसे इसको हम अगर एक्सेस मैनेजमेंट का एग्जांपल लें, अगर किसी सिस्टम में उन्होंने पासवर्ड नहीं सेट करा हुआ है, सो कंट्रोल क्या हो सकता है कि आपको वहाँ पे, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं सेट करा हुआ है, मान लीजिए कोई क्लाउड, उनका कंपनी हैज ऑल देयर डेटा ऑन AWS क्लाउड पे, और उनको MFA इनेबल्ड नहीं है, बिकॉज व्हेन आई डू दिस ऑडिट आई चेक कि MFA इनेबल है या नहीं. सो कई बार MFA डिसेबल होता है. सो दैट कम्स टू हम जब ऑडिट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी आ गया, मतलब ठीक है, फेल हो गया कंट्रोल. सो हम जब रिपोर्ट में उनको मेंशन करके देते हैं कि आपका ये 10 कंट्रोल या 50 कंट्रोल में से 10 कंट्रोल्स वर नॉट अप टू द मार्क, ये फेल हो गए हैं. सो वो कंट्रोल्स फिर चेक करते हैं और उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो हमने ये एनेक्सर ए की जो बात हो रही है, ये ISO 27001 करके एक स्टैंडर्ड होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. I have done lead implementer and lead auditor certification of this particular standard. I did it in my masters and एक मैंने last year करा था. So I do the consulting for this particular standard specifically. I do for other standards also, but this is like my expertise. ISO 27001 जिसमें 114 controls हैं. हो सकता है क्लाइंट्स के लिए कुछ 50 कंट्रोल एप्लीकेबल हो, बाकी के नहीं हो. अलग अलग डोमेन्स होते हैं इसमें, एक्सेस मैनेजमेंट होता है, बैकअप होता है. तो आई विल शो यू दैट in different in further slides. Now I hope you all like this image. I put it intentionally because I want to make it interesting. हम सब ऑडिटर की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में कोई ऐसी सी इमेज आती है क्या ऑडिटिंग सुनते ही? I want to be interactive, please. I can see Manohar laughing. Want to say anything? I can see few of faces. सबके तो वीडियो ऑफ है, बट जिनका वीडियो ऑन है, दिस इज लाइक हमें प्रेजेंट करा गया था तो ये बोला गया था. दिस इज लाइक हम ऑडिटर की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि ऑडिटर आ गया, ऑडिटर आ गया, तो उनको बहुत अलग से, हमें बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ऑडिटर्स. तो इट्स जस्ट अ फन फैक्ट, मुझे कहीं से इमेज मिली तो मैंने ऐड कर दी. सो ऑडिटर्स, बिकॉज आई एम नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑडिट पार्ट. So I can see someone's text. Okay. So controls की जब हम बात करते हैं, ऑडिट पे हम आएंगे अभी. कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं, वी हैव कवर्ड रिस्क आइडेंटिफाई, कंट्रोल्स लगाने हैं. अब कुछ कंट्रोल्स तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को फायर ड्रिल का एग्जांपल दिया था, जो दैट फायर ड्रिल आग लग चुकी है, फाइन, अब आ रही है फायर ड्रिल, तो वो करेक्टिव कंट्रोल नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो गई है. नाउ दे हैव कम टू करेक्ट दैट. सो कंट्रोल्स को वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स: प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. इसको आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर लीजिए. wherever you are sitting, there you can identify that control. हम लोग ऑफिसेज में होते हैं, CCTV लगा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी एक तरह का कंट्रोल है, फाइन. हमारे फायरवॉल लगे होते हैं, IDS लगा होता है, लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है. पासवर्ड जब हम डालते हैं, इट इज अ टाइप काइंड ऑफ अ कंट्रोल. पासवर्ड लगाने का पर्पस हमारा क्या होता है कि हम एक कंट्रोल लगा रहे हैं उस सिस्टम पे, so that no one other than us who knows the password can access that system. So we can divide all these controls. ये regular life से relate करो, इसको cyber security से relate करो, just to have an idea. Controls are divided into 3 categories: preventive, to prevent some potential problem from occurring, मतलब उस risk को हम होने से पहले ही बचा दें, like बचा लें, वो risk हो, वो event ही occur ना हो. Preventive. Detective, we should be in a position to identify what can happen, डिटेक्ट करने के लिए. लाइक CCTV इज अ काइंड ऑफ अ
डिटेक्टिव कंट्रोल, इट डिटेक्ट्स कि हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है. करेक्टिव, जैसे मैंने आपको फायर ड्रिल का एग्जांपल दिया, प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आईडीएस आईपीएस आप लोगों ने सुना होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, उनके नाम में ही है. इंट्रूजन डिटेक्शन इज डिटेक्टिव कंट्रोल, intrusion prevention is like preventive control. Examples are here. I have just taken this from somewhere, but just to, so when we say किसी को थ्योरी या डॉक्यूमेंटेशन वाले काम पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं. So my job is like both. I do documentation also and I present whatever I have documented. So policies की जब हम बात कर रहे हैं, पॉलिसीज क्या होती है, जैसे आपको कल आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस, पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव कंट्रोल. हमने पहले ही लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय 10 से 5 काम करेंगे या एक्स्ट्रा नाइट एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा, पहले ही मेंशन है हमारे यहाँ पॉलिसी में. यू हैव मेंशन इतनी लीव्स मिलेंगी, फाइन. या पॉलिसी कैन बी पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और अदर कैन बी बैकअप. हमारी कंपनी में ओवरनाइट होता है, डेली बैकअप होता है, कौन सा टाइप का बैकअप होता है. लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ दिस पॉलिसीज. द पॉलिसीज लाइक व्हाट इज मेंशन्ड, इट्स काइंड ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल. फायरवॉल्स लगे हुए हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल है. इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम प्रिवेंटिव कंट्रोल है. एंटीवायरस, हम वायरस के आने से पहले ही हम एंटीवायरस उसको सॉल्व कर देगा, वायरस नहीं आने देगा. एंटीवायरस इट्स अ प्रिवेंटिव कंट्रोल. पैचेस जो आते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल है. डिटेक्टिव कैन बी antivirus. Now it's a both prevention and detective both. Honeypots detective control hai. Disaster recovery plan, this is a very important topic and a separate domain in cyber security. Disaster recovery सुनते ही हमें लगता है कि disaster is like earthquake आ गया. Fine, earthquake आ गया, it's a kind of disaster, but इसमें cyber security का क्या रोल है? cyber security कहाँ पिक्चर में आ रही है? मान लीजिए you have your big data center in say चेन्नई या मुंबई के ऐसे एरिया में जहाँ पे सुनामी आती है बहुत ज्यादा, वहां फ्लड्स आते हैं. See that those servers, those data center have your data. तो आपको एक उसका कहीं बैकअप भी लेना पड़ेगा ना. मतलब लाइक जस्ट इमेजिन इट, डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे डिजास्टर्स वो ही होते हैं. रैंसमवेयर अटैक आ गया, वो भी एक तरह का डिजास्टर हो सकता है, राइट? Disaster can be need not be a natural disaster. They can be your cyber attack, cyber ये viruses होते हैं, ransomware आया हमारा. These can be also. So have this a broader picture in your mind. Disaster need not be like आग लग गई, सुनामी आ गई, earthquake आ गया. ये ठीक है, ये तो है ही disasters. इनके अलावा बहुत सारे हमारे cyber world से related भी attacks होते हैं. हमारा डेटा लीकेज हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो सब डिजास्टर की कैटेगरी में ही आते हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम जब डिजास्टर होता है, हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी कैसे चलेगी? से फॉर एन एग्जांपल, सपोज व्हाट कैन बी इफ दैट जूम टुडे, अगर हमारा जूम कनेक्ट नहीं होता, जस्ट एन एग्जांपल, नहीं होता, या फिर हमारा लैपटॉप, जिस लैपटॉप से मैंने लॉग इन करा है, मैंने फाइल इसी में सेव करी है, मैंने मेल पे नहीं ली, बैकअप नहीं लिया, इसमें था, और बाय एनी चांस अनफॉर्चुनेटली मैं सिस्टम पे लॉग इन नहीं कर पाती, तो कैसे कंटिन्यू रहता? मैंने कहीं और बैकअप लिया होता तो मैं ठीक है कोई और सिस्टम लेती, मैं बैकअप जहाँ से लिया वहां से रिस्टोर करती, फाइल डाउनलोड करती, पीपीटी, और मैं वहां पे जिन कर देती. तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव टू कंटिन्यू द बिजनेस? किसी भी कंपनी में कोई, अगर आप इंटरनेट वाईफाई कंपनी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कि जिसमें कोई भी एम्प्लॉय कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, what is the alternative they have taken? So I am telling you this in detail because it's a separate domain. Business continuity planning, disaster recovery plan, ये अपने आप में एक separate domain है cyber security का. Now moving towards IT audit part. If you have any question, again I am telling you, you can ask me in between. I have covered the risk management part. We might have few other slides also इसमें, लेकिन ऑडिट की जब हम बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, हमारे दिमाग में फाइनेंशियल ऑडिट, सीए करते हैं, ये तो इनकम टैक्स वाले करते हैं, आता है, बट आईटी ऑडिट भी होती है. आईटी ऑडिट भी होती है, सेम प्रोसीजर होता है उसका. और ऑडिट सुनते ही ऑडिटर आ रहे हैं, ठीक है, एक इंटरनल ऑडिट होती है, सॉरी, एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है. इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन
अलग डिपार्टमेंट करता है, जिसने जिसको ज्यादा पता नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो. दैट पर्सन कैन बी एम्प्लॉय ऑफ दैट सेम कंपनी, बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लाइक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, या जिसको ज्यादा पता नहीं हो. और एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, वो तो आपको पता ही है कि कोई बाहर से आ रहा है और वो ऑडिट कर रहा है. सो दिस इज नेक्स्ट वे विल मूव टुवर्ड्स IT ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट का जैसे हमने बताया, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो उसी कंपनी का होगा, फाइन. लेकिन सेकंड पैराग्राफ इफ यू ऑल रीड, it helps organizations accomplish the objectives by evaluating business risk and controls and offer recommendations to improve the management and governance process. So again and again I am giving emphasis on this, like governance as in it higher management का role आ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं. तो इंटरनल ऑडिट लाइक इंडिपेंडेंट होता है वो, बट कोई एक्सटर्नल ऑडिट हो रही है उससे पहले ही कंपनी का कोई बंदा वो ऑडिट कर लेगा, तो उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ रिस्क हैं जिसको हमें कवर करना है. सो इट्स अ डायग्राम, इफ यू कैन ट्राई टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट. ऑडिट में क्या हो रहा है पहले? फर्स्ट स्टेप इज लाइक वी आर प्लानिंग, देन वी आर टेस्टिंग, देन वी आर रिपोर्टिंग, एंड देन वी आर डूइंग द फॉलो अप. आई होप इट इज क्लियर. प्लानिंग मतलब हम पहले प्लान करेंगे कि हम ऑडिट में हमारा स्कोप क्या है. इफ आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी एंड दैट कंपनी हैज अराउंड 5-10 ऑफिसेस, मान लीजिए 5 ऑफिस इंडिया में, ठीक है, whether I am covering all the 5 offices or maybe they have around 5 offices and एक 5 जगह उनकी लोकेशन से, एक साउथ में है, एक मुंबई में है, एक मान लीजिए चेन्नई में, एक बैंगलोर में है, एक दिल्ली में है. So are we covering all those locations in that internal audit? It could be a part of planning exercise. Scope में define होगा ये. So are we covering what all services we are covering? Then when we have come to this point, discussion planning हो गई हमारी कि हम इतने बजे से इतने बजे करेंगे, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये लोकेशंस इन्वॉल्व होंगे, ये स्कोप होगा ऑडिट का. Then we'll start doing that ऑडिट पार्ट, टेस्ट करेंगे हम उसको, ठीक है. उसके बाद हम लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे. देन विल प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट जिसकी हमने ऑडिट करी है. फिर उससे हम उनसे फॉलो अप करेंगे कि आपने वो सारी चीजें जो जो आपके ऑडिट में पकड़ी गई थी या जो जो रिकमेंडेशंस आपको मिले थे, आपने उनको कवर करा है या नहीं करा है. तो गिव देम सर्टेन टाइम, सर्टेन सम अमाउंट ऑफ टाइम, कि से 1 week 2 week या डिपेंडिंग ऑन कितना गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं. देन विल आस्क देम टू प्लानिंग में हमने क्या क्या कवर करा. ऑडिट प्लान बनाते हैं, मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, बोर्ड ऑफ विजिटर का अप्रूवल लेते हैं. हमें उनकी ऑडिट करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है. वी कांट, सो काफी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होती है, क्योंकि वो लोग हमारा कंपनी विल शेयर देयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद द ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स. I have taken this example because technical थोड़ा सा relate करते जाए हम, like थोड़ा सा generic नहीं लगे. लैपटॉप सर्वर्स की बात इसलिए कर रही हूँ because now every company has their data on cloud. तो पहले एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों ने सुना होगा, फायरवॉल्स जो कंपनी के ऑफिस में लगते थे, अब सारे फायरवॉल्स मैक्सिमम कंपनीज अब सब रिमोटली काम कर रहे हैं. सो दे हैव मूव्ड देयर नेटवर्क एंटायरली टू द क्लाउड नाउ. सो क्लाउड सिक्योरिटी is a different domain, independent domain, जिसकी बहुत requirement है अभी. As I told you yesterday also, cloud security, cloud पे सारा डेटा जा रहा है, तो cloud के basics clear हो. अगर किसी को interest है cloud की तरफ जाने में, there are multiple free of cost certifications. AWS पे आप लोग अगर अपना account बनाएंगे तो उस पे बहुत सारी training modules हैं, those are free of cost. You can start going through them, watch them, have that basics clear. फिर आपको लगे कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि क्लाउड बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में, क्लाउड की जिसको नॉलेज होती है उनको. नाउ जस्ट सी दिस इमेज एंड ट्राई टू सेल्फ अंडरस्टैंड what has happened here.
I want an answer from any one of you. Like why this person face is like crying, why he's crying. It's mentioned here in the slide itself, but what are you trying to say and what we could have done. Tape restore fail हो गया है कि क्या हुआ. मान लीजिए it's a scenario of some place where there was an earthquake or some disaster occurred, and they had their data backed up in some servers, but they could not restore it. I got someone's. Okay, so anyone would like to answer? First question, what has happened? Second, how we can avoid, how we could this person could have avoided it. Backup and recovery की बात हो रही है यहाँ पे. Anyone would like to give any answer? Anyone, you can drop me a message in chat. What could have been the control here? Anyone? So they have tried to restore their data that was backed up somewhere, and restore could not be done. Restore failed. Whatever data they had was lost. So इनको पहले test करना चाहिए था. This company should have tested it earlier और restore करने का. So क्या होता है when we do the audit, there is one thing we check. आपने कुछ scenario, a company should have taken few scenarios, their network failure, server failure, data restore का उनको एक few scenarios लेके उनको test करना होता है. एक उसकी report चाहिए होती है ऑडिटर को देखने को कि आपने साल में 1-2 बार टेस्ट कराया है या नहीं कराया. अगर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि क्या-क्या दिक्कत आ सकती है. So this was just an example to show you कि क्या हो सकता है. हम लोग की जब सप्लाई चेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि what is the role of cyber security, but I'm teaching this to the students of Maharaj University only, like MCS के जो student हैं उनके एक topic है supply chain management. So that there also I have I'm trying to make them understand the interrelation between supply chain management and cyber security. हम लोग because cloud पे जब data जा रहा है वो third party तो हो गया, वो suppliers हैं, those are vendors, so उनकी security भी अब check करते हैं ना. So every company has their own vendors, own suppliers, so they check. We should be confident enough कि जो हमने vendors लिए हैं, जो हमें services provide कर रहे हैं किसी भी company को, उनकी भी security, cyber security के point of view से वो कितने level पे हैं, क्या level है उनका. So these are few I think someone is trying to draw something. Satyashri, if you can, someone here, sir, आपका कुछ cursor से screen पे. So these are the few standards which I think if you can make a note of it and would like to go in detail, आप जानना चाहेंगे. जैसे हमने ISO 9001 की बात करी, so this is like 31,000, 27,001, 27,005. Fourth is 2701, जो cloud की बात करता है, personal information 27017. उन्हीं का स्क्रीन मैडम, उन्हीं का नाम किसी ने कंट्रोल ले लिया. Last one is ISO 22301 जो business continuity की बात करता है. So these are like I think I don't know how these people can मैम settings में जाके आप change कर सकते हैं I think. Ajay Jawar, I can name out people who are trying to draw something on the slide, so please avoid doing this, don't do this. मैम can you restrict, आप एक बार settings में जाके check कर सकते हैं क्या?
Yes, we are doing it. Yeah. Participants, please stop working on these slides. I will remove Ajay Jawad ji अगर ऐसे कुछ लग रहा है कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं. Okay, so I'll continue. These are like 6 standards जिसका हमने name करा है. मैंने name करा 31,000. तो आप एक बार you can go back and check it if you are interested in this domain. So just videos देख सकते हैं YouTube पे इसके, या कुछ basic idea ले सकते हैं. And you can इन सबके individual certifications भी होते हैं. So 22301 का अलग से certification होता है, 27001 का होता है, ISO BSI करके एक organization है वो certification कराती है. If you are interested in moving towards this this domain. इसके बाद I have skipped one slide which I would like to cover now. This one. So this is when we talk about policy, procedure, standard, guidelines, and all this. So policy की जब हम बात करते हैं तो it's the last topic mentioned here. Identifies issue and scope. Need to do this. Why do policy से आता है? Why do I do need to do this? मतलब like policies जो आपको हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है. क्वेश्चन है कि should we do it, should we follow, मतलब कुछ कंपल्सरी है या नहीं. सो जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गाइडलाइन मतलब कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी हुई हैं तो उनको फॉलो करना है. पॉलिसी हमें बताती है 1 to 1 पॉइंट होते हैं, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट होता है. प्रोसीजर हमें बताता है कि उस पॉलिसी की डिटेल में मेंशन क्या है. स्टैंडर्ड मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड. प्रोसीजर बताता है कि हाउ डू आई डू इट. प्रोसीजर मतलब एक्सप्लेन करता है कोई भी कंपनी का. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल. तो पॉलिसी जब हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंट्रोल व्हिच वी हैव टेकन एन एग्जांपल इन द प्रीवियस स्लाइड. प्रिवेंटिव कंट्रोल है पॉलिसी. हमने पॉलिसी में पहले ही मेंशन कर दिया कि ये पासवर्ड होना चाहिए, बैकअप ये होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल ऐसे होने चाहिए. इंसिडेंट, अगर कोई कंपनी में इंसिडेंट रेज हो रहा है तो ये तरीका है इंसिडेंट रेज करने का. देन ईमेल सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन क्या होना चाहिए. तो कंसिडरिंग द आईटी एग्जांपल्स, हर कंपनी की कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पे डिफाइन होता है. प्रोसीजर उन्हें बताता है कि उनको फॉलो कैसे करना है. स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है. गाइडलाइन भी एक तरह का एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ रिकमेंडेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि हाँ दिस इज वे यू कैन फॉलो. दिस इज जस्ट वन स्लाइड आई हैव एडेड इन बिटवीन. नाउ आई होप यू आर क्लियर विद रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होती है, वल्नरेबिलिटीज क्या होते हैं, थ्रेट क्या होती है. तो आई विल शेयर एन एक्सेल फाइल वेयर विल टुगेदर ट्राई टू फिल इन दैट एक्सेल फाइल. जिसमें आपकी समझ में क्या आया कि एसेट क्या हो सकता है किसी भी कंपनी में. ठीक है, उसमें मेंशन है कुछ एसेट्स. बट टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or anything you would like to add, not necessarily a question, anything if you would like to add, और आपको ये डोमेन में कुछ और जानने का मन कर रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या क्या है, आप like I would like to know your opinion now, anything you would like to share. Let's take 5-10 minutes just for this, then I'll share this exercise. But I don't want everyone to be on mute. आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. Now I want you to speak. There are like 69-70 people join here. So everyone is from IT background, someone from non-technical background. If you can like unmute yourself. Okay, so I've got a question: which certification course is better for IT audit? IT audit. Okay, so first of all, I think Nandan Joshi sir has asked this question. Sir, if you can unmute yourself and tell me your background first, so that accordingly I can. Yes, sir. I am also from IT background. IT. So you are into teaching, academics? Yeah, academics. Okay.
And you were asking this for if you would like to move into corporate, or like just into you want to be in academics only and then you want to go for For my academic students also, and somebody who wants to make a career after some time into the IT. Okay, okay. So they someone is in into IT, but they want to move into security, information security, IT audit part. Yeah. Okay. So sir, there are like multiple certifications. One of them is Chief Information Security Auditor, CISA. But the constraint or the requirement here is that कि usually क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट करते हैं उनका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए उस डोमेन में, right? Because if a new person is starting their career, so या तो उस person ने उसी फील्ड में उसी डोमेन में 2-3-4 साल काम करा हो या उसी डोमेन में मास्टर्स करा हो, तो आप सर्टिफिकेशन तो हम ले सकते हैं, यू कैन पास दैट सर्टिफिकेशन. सीसा करके होता है, इसाका करके एक बॉडी है वो कराती है, CISA. बट सर्टिफिकेट वो 5-6 साल तक के लिए वैलिड भी होता है, बट आपको सर्टिफिकेट नंबर और वो सब तब मिलता है व्हेन यू qualify certain requirement. But I would suggest you to first you and your students, maybe if someone wants to start their career, first have the basics clear. IT audit is fine, but basics clear as in जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताए 27001. So ISO 27001 का भी एक ऑडिटर का सर्टिफिकेशन होता है, लीड ऑडिटर. ISO 27001 लीड ऑडिटर BSI भी कराती है. तो वो उसमें as such there is no requirement that person should be from information security background. I did that certification when I was studying in my masters, and now it is helpful to me even today. So ISO 27001, you can make a note of it. You can try to explore that. What is it? And आजकल तो सब online हो रहे हैं, remotely हो रहे हैं, online proctor based होते हैं ये. And it is not that of 4 दिन की ट्रेनिंग होती है और 5वें दिन एग्जाम होता है. 4 days training and 5th day is the exam. So this is good to start career in this side, information security, auditing and consulting side. And I have received Ashish, I mean designation or qualification which I have to see before hiring that person. Which question is this? Someone has asked, I'm a student of MCA. You explain everything. Okay, thank you. Thank you, Khushi. Ashish has asked, which type of person I have to hire if I want to assess my web server? Okay. So first of all, if Ashish, if you can unmute, sir, you can unmute yourself and tell me the purpose. Like, because in just one line, I can't understand like what you're trying to ask. If you can explain, unmute yourself and tell me in detail. Okay. You can't speak right now, so I mean designation qualification which I have web server को assess करने के लिए. So that person should first of all should be from a technical background, and web application security जिसको knowledge हो, जिसको source code की knowledge हो, source code review करने की knowledge हो, जिसको that person should first of all should have understanding of web application security. vulnerabilities का identify होना चाहिए, source code review करके एक exercise होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. So when you will make your accounts on LinkedIn, आप या फिर LinkedIn पे आप जाके, because I personally I'm active on LinkedIn because वहाँ पे बहुत सारी knowledge जानने को मिलती है, आप relevant लोगों को add करते हो तो. So आप वहाँ पे job postings भी आती हैं, job roles भी mention होते हैं LinkedIn that this company is looking for these persons for this position, and this person should have these qualifications. So web application security अपने आप में एक domain है. So सर आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्टीज की नॉलेज होती है किसी भी वेब सर्वर को असेस करने के लिए. So that person is qualified to do it. You can go on that person. Anyone else has any other question? Ma'am, thank you everyone for having me here. Thank you.